آج نومبر کی 22 تاریخ ہے اور سال 2025 ہے۔ میں آپ سب کو فیلوشپ آف بلیورز کی ہفتہ واری بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں، میں یہاں دوسری جگہ پر ہوں، الاباما میں، اور اس لیے گھر سے ذرا دور ہوں۔ بہرحال آج میں نے سوچا کہ کیونکہ ہم نے کرسمس کے حوالے سے کوئی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تو جو ہم اسٹڈی کر رہے تھے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں، اس کو روک کر تو ہم نے آج میری کوشش یہ ہے کہ ایک تعارف کے طور پر وہ باتیں آپ سے کی خدمت میں پیش کروں جو میرے خیال میں تو ہر مسیحی کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہیں اور جانتے ہیں سب لوگ، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہوں گی کہ ہم اس ان باتوں کو سیکھیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جب مسیحی پہلے ہی سے یہ باتیں جانتے ہیں تو پھر ان باتوں کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر میں نے یہ کہا کہ سارے کرسچنز کو ان باتوں کا پتہ ہے جو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، تو پھر دوبارہ سے ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو نوعمر نوجوان کے ایک سوال کے جواب پر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ان باتوں کو دوبارہ سے بیان کر دوں تو ان میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم سبوں کے لیے یہ کچھ باتیں فائدہ مند ہوں گی، کیونکہ ہم نے اب نئے عہد نامے کے ایک عظیم واقعے کی طرف لوگوں کی توجہ کرانی ہے، اور جو آنے والا کرسمس ہے، اور جو کچھ لوگ تو منع کرتے ہیں آج کل کرسمس منانے سے، اور کرسچن لوگ ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس کو نہیں منانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو کرسمس ٹری کے اوپر پرابلم ہے، کچھ لوگوں کو دن کے اوپر پرابلم ہے، تاریخ کے اوپر پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سن گاڈ تھا، تو یہ تو وہ، تو بہت کچھ اس کے اوپر کہا جاتا ہے۔ میں ان ساری باتوں کو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ یہ 25 دسمبر ہو یا نہ ہو اوریجنل میں اس کو ان لوگوں کی تسلی کے لیے کہتا ہوں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی دن تو ہوگا جس روز آپ کی اس دنیا میں انسانی وجود میں کلام مجسم ہوا، تو ہمارے لیے وہ دن اور اس کی یاد کو منانا بہت ضروری ہے، اور اس میں مجھے کوئی قباحت یا کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں نے کبھی بھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے، نہ ہی کبھی ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، نہ ہی میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو اس بات کا کوئی جواب دوں۔ تو کلام پاک جو کہ بائبل کہتے ہیں، اس کو عام طور پہ میں تو ہمیشہ کلام پاک کہتا ہوں، اس کے نصف حصے کو ہم آدھے حصے کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، نیا عہد نامہ کہتے ہیں، اور پہلے حصے کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ آپ نئے عہد نامے کا لفظی مطلب جانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے نیو کوننٹ۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو نیا عہد نامہ تو کہتے ہیں، لیکن لیکن ان کو بیان کرنے میں مشکل ہے کہ کیا اس میں فرق ہے، پرانا کیوں کہتے ہیں، نیا کیوں کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ، تو انگریزی میں اس کا جو لفظی مطلب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ نیو کوننٹ، ایک نیا عہد۔ تو اب نئے عہد کا جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام تو مسیحی علماء کا دیا ہوا ہے یا بائبل سوسائٹی نے اس کو یہ نام دیا ہے؟ کلام مقدس میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو یہ اچھا سوال ہے، اور ایکسکیوز می، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر اس کا جواب دینا چاہے تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ دوسروں کو پتا چلے کہ کیا اس کا ذکر کلام پاک میں موجود ہے، نئے عہد نامے کا، یا کہ بائبل سوسائٹی کا یا ہمارے علماء حضرات کا دیا ہوا یہ لفظ ہے۔ تو اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور اوروں کے ساتھ شیئر کریں۔
अगर नहीं तो मैं आपको कलाम पाक से इसका हवाला देता हूं और आप ये लफ्ज वहां देखेंगे और ये जान रखेंगे कि ये कलाम पाक का लफ्ज है, किसी इंसान का दिया हुआ लफ्ज नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी आलम का दिया हुआ लफ्ज नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो लूक चैप्टर 23 और वर्स 20। लूक चैप्टर 23 22, सॉरी, चैप्टर 22 और वर्स 20। और गौर फरमाइए कि इसमें क्या लिखा। इसी तरह खाने के बाद इसी तरह खाने के बाद प्याला लेकर ये फरमाया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। ये अहद नया अहद है मेरे उस खून में जो तुम्हारे लिए बहाया गया था। तो अब आपको सबूत मिल गया कि ये जो लफ्ज है अहद नामा, नया अहद नामा, ये क्या है। भेद आपकी नजर में वाजे हो गया होगा कि ये खाने के बाद का प्याला लेकर ये फरमाया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो अब आपको सबूत मिल गया। आपने सुन लिया कि नया अहदनामा, न्यू टेस्टामेंट, ये लफ्ज अहद कवनेंट का लफ्ज है। कवनेंट एक पार्टी, एक फरीक की तरफ से कहा गया एक इंतजाम है, एक अरेंजमेंट है जिसे दूसरी पार्टी या फरीक को कबूल करने या मुस्तरद करने का मौका मौजूद है। ये नया अहद है। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ईमान की रूह से, और आप इसको अपने ना ईमान होने की बिना पर रद्द कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है और ये फ्री विल है। और हमारा ईमान है कि गॉड चोजन पीपल, माई शीप विल हियर माई वॉइस एंड विल फॉलो मी के पेश नज़र ये उन लोगों के लिए बहुत ही अहम लफ्ज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक पार्टी या एक फरीक इस अहद को या तो कबूल कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। लेकिन अब लेकिन का लफ्ज आ गया है तो फिर हमें इसका मतलब पता है कि इसका मतलब जानना अब हमें बहुत जरूरी है। बड़ी तवज्जो देनी है और बड़े गौर से सुनना है कि आप तैयार हैं इस नए अहद को समझने के लिए। लेकिन इस अहद को तब्दील नहीं कर सकते। आप मान सकते हैं या रद्द कर सकते हैं, बट यू हैव नो अथॉरिटी टू मेक एनी चेंजेस इन दिस covenant, because this covenant is written with the blood of our Lord. तो ये बात हमें पहले से गौर तलब है। यू कैन एक्सेप्ट दिस कवनेंट, यू कैन रिजेक्ट दिस कवनेंट, बट यू एंड आई हैव नो अथॉरिटी टू ऐड इन दिस कवनेंट। और ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। नए अहदनामे को तब्दील नहीं किया जा सकता, ना ही पुराने को। तो पुराने अहदनामे में जिस बात को याद रखना जरूरी है, यह लाजमी है कि ये पुराना अहदनामा, कवनेंट, बुनियादी तौर पर कौम बनी इसराइल के साथ खुदा के अहदनामे के कोहे सीना पर के पहाड़ पर बुजुर्ग मूसा के जरिए हमें बख्शा गया था। और अहदनामे की बुनियाद ये है। तो अब आप जान गए कि पुराना अहदनामा कोहे सीना पर खुदावंद खुदा और बुजुर्ग मूसा के दरमियान या उनके जरिए कौम बनी इसराइल के साथ किया गया। और ये पुराना कवनेंट बुनियादी तौर पर यही बात हमें याद दिलाता है। लेकिन नए अहदनामे में ये कह लें कि नए अहदनामे में की जो बुनियाद है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन के जरिए इंसानों के साथ खुदा के नए इंतज़ाम को, न्यू कवनेंट को
बयान करता है। तो वाज़ेह फर्क हो गया, वो बुजुर्ग मूसा और खुदा के जरिए कोहे सीना पर, और नया जो कवनेंट है, न्यू जो अहद है, वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन के जरिए से इंसानों के साथ और खुदा के नए इंतज़ाम को बयान करता है। अब फर्क क्या है? फर्क तो नजर आ गया, वो कौम के साथ है, वो 12 कबीलों के साथ है, और ये तमाम इंसानों के साथ है। आप खरूज की किताब देख लें, एक्सोडस चैप्टर 24 और 1 to 8, पहली 8 आयतें पढ़ लें। एक्सोडस चैप्टर 24 फर्स्ट 8 वर्सेस, और आपको ये सारी बात पुराने अहदनामे की यहां पर नजर आ जाएगी। वक्त को बचाने के लिए ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको देता हूं कि आप इसको खुद पढ़ें। और नए अहदनामे को लूक चैप्टर 22 और वर्स 14 to 20 पढ़ें। लूक चैप्टर 22 वर्स 14 to 20, एंड सेकंड Corinthians चैप्टर 3 वर्स 6 and 11 पढ़ें। हवाला अगर आपको लिखने में मुश्किल है, मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूं। अगर आप दोबारा चाहते तो हाथ खड़ा कर दें, आई रिपीट इट अगेन। तो पहला ऐद पुराने ऐदनामे से एक्सोडस चैप्टर 24 फर्स्ट 8 वर्सेस, Verse 3, न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लूक चैप्टर 22 वर्स 14 to 20, चैप्टर 22 ऑफ लूक 14 to 20, ये जरूर पढ़िएगा। और सेकंड Corinthians चैप्टर 3 वर्स 6 to 11। तो बुजुर्ग मूसा से कहा गया कि अपने खास खिदमतगार और दीगर 70 बुजुर्गों के को लेकर खुदावन के पास ऊपर आ जाओ, और तुम दूर से ही सजदा करना। और बुजुर्ग मूसा खुदा का बंदा कहता है कि ऊपर आए, लेकिन वो दूसरे लोग नजदीक ना आए, और कोई नजदीक ना आए, सिर्फ खुदा के जो बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जिनको बुजुर्ग मूसा के जरिए से हदायत दी गई, सिर्फ वही पहाड़ पर आए, और उनके अलावा और लोग बुजुर्ग मूसा के साथ ऊपर ना आए, पहाड़ के ऊपर ना आए। ये फर्क समझना कि पहाड़ भी बुलंद है, और दूसरों को वहां आने से मना किया है, लेकिन वो मुकर्रर लोग हैं। अब तवज्जो कायम रखिएगा कि जो खरूज है, एक्सोडस 24 वर्स 3, एक्सोडस 24 वर्स 3, जब आप उसकी तलावत करेंगे तो आपको ये बड़ी खास बात वहां नजर आएगी कि बुजुर्ग मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और खुदावंद के अहकाम उनको बताए। किसके जरिए से? खुदा की सारी बातें, खुदा के सारे अहकाम, हुक्म, कमांडमेंट्स सब लोगों को बताएं। और हम आवाज होकर सब ने जवाब दिया। इसको कवनेंट क्यों कह रहे हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कवनेंट इसलिए कहते हैं, वन साइडेड नहीं है। जो खास बात समझानी है पुराने अहदनामे के हवाले से, कि वो ये बात याद रखनी है कि किस तरह से पहाड़ का के ऊपर जाना, एक बंदे का बाकी का नीचे रहना, ये तस्वीर अपने जहन में रखें। और फिर बुजुर्ग मूसा ने जो हदायत खुदा से ली, जो बातें, जो अहकाम खुदा से लिए,
जब वो वापस आए तो सब बातें और खुदा के अहकाम लोगों को बताए। ये बहुत जरूरी है पुराने अहदनामे को समझना। फिर जितनी बातें मूसा ने खुदा के हवाले से लोगों को बताई, हम आवाज होकर पूरे लोगों ने क्या कहा है कि जितनी बातें खुदा ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। ये है अहद। तो इट्स नॉट वन साइडेड। जो आपको एग्रीमेंट दिया गया, जो आपको अहकामात दिए गए, जो कवनेंट आपको समझाया गया, दिया गया, वो वन साइडेड नहीं है। खुदा ने अपने बंदे मूसा को दिया, मूसा ने सारी बातें सारे अहकाम लोगों को दिए, और उसके बाद क्या हुआ? सब लोगों ने, ये तीसरी आयत है, सब लोगों ने एक आवाज होकर, हम आवाज होकर ये जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावन ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। फ्यूचर की बात, ये नहीं आज मानेंगे, हमेशा मानेंगे। दिस इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट। तो बुजुर्ग मूसा ने खुदावंद की सारी बातें लिख दी। पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे भी कोई मामूली स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़े लिखे थे, बल्कि जो शाही असातिज़ा थे मिस्र के, टॉप टीचर्स, रॉयल टीचर्स, उनके जेर निगरानी तालीम हासिल की थी। तो आज के मुताबिक तो कई पीएचडीओ के मालिक होंगे। बहुत ही आला तालीम याफ्ता थे। उनकी तहरीरें, उनकी बातें आप सुने तो अकल दंग रहती है। शाही उस्तादों के शागिर्द, अहले इल्म, साहिब हिकमत, लिखना पढ़ना जानते थे, अनपढ़ नहीं थे। सिर्फ ये बात याद करा रहा हूं। तो मैं आपको चंद आयात की तिलावत के साथ कुछ शेर बातें करता हूं। तमाम आयात की तिलावत तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी उनके बारे में कुछ होमवर्क है, तो आप जरूर उस होमवर्क को कीजिएगा। अब आपको डॉक्टर लूक की मार्फत पाक तरीन अंजील पाक के, यानी डॉक्टर लूका के मुताबिक अंजील 24 बाब की 14 से 20 आयात की तलावत करनी है, और फिर सेकंड करंथियन 3 बाब की 6 से 11 आयतों की तलावत जरूर करनी है। क्या कमाल की हिकमत के साथ, इलाही रूह से भरपूरी के साथ ये कलाम हमारे लिए लिखा गया है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारा खत, वर्स 3, चैप्टर 3 वर्स 2, हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। ये खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। वो खत कौन सा खत है जो हमारे दिलों पर लिखा हुआ है? उसका जवाब है, वो खत तुम हो। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, वो खत तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। अब यहां पर सोचना पड़ गया। एक तो कहा कि वो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। फिर सवाल मैंने उठाया कि वो खत कौन सा है और जो हमारे दिलों पे लिखा हुआ है। जवाब दे रहा हूं कि वो खत तुम हो। ये जवाब भी पौलुस रसूल देते हैं, और उसे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। किसको? तुम्हें। यू आर द लिविंग लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, रिटन ऑन योर हार्ट, नॉट विद इंक बट बाय हिज ब्लड। आप देख रहे हैं, अब नया ऐदनामा शुरू हो रहा है। अब आप जान गए हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, और किस तरह से नए ऐदनामे को मैं आपके सामने इन दो हकीकतों को बयान कर रहा हूं। तो अब जवाब देना आसान हो गया है, समझना आसान हो गया है। पुराना क्या था, अब नए की बात है। तो वर्स 3, जो है चैप्टर 3 की,
तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं लिखा, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं लिखा। अब ये और वाजे हो गया, फर्क वाजे हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट? इतनी खूबसूरत बातें हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि मैंने कहा कि शायद आपको ये पता हो, लेकिन उनको दोबारा रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम नए अध्याय को, न्यू कवनेंट को सीखना चाहते हैं। तो तुम जिंदा खत हो जो हम खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं लिखा, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थरों की तख्तियों पर नहीं लिखा, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर लिखा है। अगर स्याही से लिखा हो तो आंसू गिरने से वो स्याही गड़बड़ हो जाती है। पानी गिरने से, पसीना गिरने से उस स्याही में कुछ खलल आ सकता है, पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो गोश्त की तख्तियों पर लिखा है, और वो कैसे खत्म होगा? गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर लिखा है। अब आप 11 आयत पढ़ लें, सेकंड करंथियों की तीसरे बाब की। आपको बहुत कीमती मालूमात हासिल हो जाएंगी। जब आप 11 आयत पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कीमती मालूमात हासिल मिलेगी। ये नए नामे के खादम हैं जो इकरार करते हैं कि हम नए नामे के खादम होने के लायक भी नहीं हैं। ये उनकी हलीमी देखिए, फड़े नहीं मार रहे, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे। हम इस लायक भी नहीं है कि नए नामे के खादम हो जाएं। ये नए नामे खादम हैं जो इकरार करते हैं। ये भी नोट फरमाइए कि ये खादम लफ्जों के खादम नहीं हैं, जुबानी जमा खर्च करने वाले खादम नहीं हैं। ये रूह उल कुदस की हदायत से कलाम करते हैं, रूह उल कुदस की कुदरत से कामल होकर, भरपूर होकर वो कलाम तहरीर करते हैं। इट्स अ वाजे वाजे डिफरेंट है। बल्कि रूह के खादम हैं और लफ्ज मार देते हैं, ये भी बयान कर देते हैं, लफ्ज मार देते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि लफ्ज जो हैं उनके दांत नहीं होते, लेकिन बहुत सख्ती से काट जाते हैं, चीर देते हैं दिलों को, दिमागों को, रिश्तों को। और वही चंद लफ्ज जोड़ देते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं, टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी को इकट्ठा कर देते हैं। तो लफ्जों का इंतखाब नहायत खुदा के खौफ के साथ करना चाहिए, नहायत इज्जत और एहतराम के साथ करना चाहिए। तो हमें ये बात नए न्यू कवनेंट में बहुत अहम और जरूरी बात है। मैंने सब कुछ पढ़ा तो नहीं है, यानी मैंने तो पढ़ा है, लेकिन मैंने अभी इस वक्त जूम पे सारा कुछ तो नहीं पढ़ा। तो फिर आप क्या पढ़ेंगे अगर मैंने आपको सारा पढ़ के सुना दिया? तो ये रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला अहद है। जब मुजरम ठहरने वाला अहद जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। अब मैं आपको बहुत ही नहायत ही अहम और ज़रूरी हकायक की जानब ले जा रहा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो कायम रहना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, पुराने कवनेंट ने खुदा की पाकीज़गी को, होलीनेस ऑफ गॉड को शरीयत के रास्ती मयार में जाहिर किया है, जो होलीनेस का मयार है उसमें जाहिर किया है। एक आने वाले नजात दहिंदा रिडीमर का अहद है ये। अब एक ख्याल को मरकजी ख्याल बना लें कि न्यू कवनेंट इज द रिडीमर्स अहद। और अब एक दूसरी अहम हकीकत सुन लें
नए अहदनामे में खुदा की पाकीज़गी, द होलीनेस ऑफ गॉड, इसको और इसके राइचस सन, रास्त और पाकीज़ा और बेऐब बेटे में जाहिर किया गया है। अब इसमें आपको तो जी फर्क एक क्या दफा नजर फिर आया अगर आपने ये एक देख दफा फिर लिया? रिपीट करें, जी। इसे दोबारा से रिपीट करें, थैंक यू। हाँ, हाँ जरूर। तो मैं ये नए और पुराने की थोड़ी सी जो तफरीक है, आपकी तवज्जो कोहे सीना पर होनी चाहिए, जो मैंने पहले पढ़ के सुना दिया। फिर दूसरी तवज्जो होनी चाहिए बुजुर्ग मूसा पर। और अब तीसरी तवज्जो जिसकी तरफ पुराने एहतनामे से हटाकर अब नए एहतनामे की तरफ बता रहा हूं, ये बड़ा बुनियादी और फाउंडेशनल फर्क है। तो इसलिए मैं रिपीट करता हूं, नए एहतनामे का जो मरकजी नुक्ता है, न्यू कवनेंट जो है, अहम हकीकत है। नए एहतनामे में खुदा की पाकीज़गी, द होलीनेस ऑफ गॉड, और इसके राइचस सन यानी रास्त, पाकीज़ा, बेऐब बेटे में जाहिर किया गया है। अब उस तरफ बुजुर्ग मूसा हैं, क्या उनमें ये खूबियां थी? नहीं। वो अच्छे आदमी थे, खुदा के चुने हुए थे, बेऐब नहीं थे। 80 साल की उम्र में जब उनको जॉब डिस्क्रिप्शन मिली, अपॉइंटमेंट हुई, एक कत्ल कर चुके थे, लेकिन जो खूबियां, जो खुसूसियात न्यू कवनेंट में है, द फाउंडर हिमसेल्फ इज अ राइचस बेऐब पाकीजा, खुदा का बेटा। तीसरी बात, फिर नए अहदनामे में वो तहरीरें शामिल हैं, वो राइटिंग शामिल हैं जो इस नए अहदनामे के कंटेंट में मवाद को जाहिर करती हैं। द न्यू टेस्टामेंट देन contain those writing that reveal the covenant of the new creator, the new covenant। तो नए अहदनामे का पैगाम क्या है? नंबर वन, इस अजीम, लासानी, पाक तरीन जो था और जो है और जो आने वाला है, कादर मुतलक, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, ज़ात इलाही जो हमारी खातर इंसानी फितरत अख्तियार करके जो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, ये उसका कवनेंट है। तो आप जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन पहला चैप्टर आप जानते हैं, जो दर हकीकत इब्तदा में कलमा था। मैंने ये बात पहले भी दोहराई है कि लफ्ज वर्ड है, वर्ड्स नहीं है। हमने कलाम तर्जमा किया है उर्दू में। अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो इन द बिगनिंग वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो जो दर हकीकत इब्तदा में कलमा है, और कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुदा था, और यही कलमा इब्तदा में खुदा के साथ था। ही इज द फाउंडर ऑफ द न्यू कवनेंट। अब आपको ये, इसमें मूसा नहीं है, गॉड हिमसेल्फ इज देयर मेकिंग दैट कवनेंट इन द फॉर्म ऑफ हिज सन। दूसरी अहम बात, इसी पाक जात ने अपने आप हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए अपने आप को दे दिया। पुराने अहदनामे में कहीं भी मूसा ने कुर्बानी इस तरह से नहीं दी कि खून का अहद करके वो इसको जोड़ता। ये बहुत बड़ा फर्क है। और हमारे खुदावन ने
अपना खून देकर उसके ऊपर जो मोहर लगाई है वो अपने खून की लगाई है। और खून कौन सा? पाक तरीन बेऐब खुदा के बेटे का खून। तो इसी जात पाक ने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को दिया। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28 याद करा देता हूं। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। नए नामे का पैगाम आपको वाजे हो जाएगा कि नए नामे का जो मैसेज है वो क्या है। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है, खुदावंद फरमा रहे हैं पाक के मौके पर जिसको खुदावंद की मेज कहते हैं। ये मेरा वो अहद का खून है, कवनेंट का खून है, जो बहुतों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। दिस इज द मैसेज ऑफ द न्यू कवनेंट। दिस इज द निचोड़ ऑफ द नया अहदनामा। ये गुनाहों की मुआफी के लिए ये खून दिया गया है। दूसरी अहम बात या दूसरा बड़ा अहम ग्रुप जिसे हम कलीसिया कहते हैं, चर्च कहते हैं, पीपल ऑफ गॉड कहते हैं, जिसके हम सब मेंबर हैं, हिस्सेदार हैं, हिस्सा है। इस ग्रुप ने यानी मकामी कलीसिया ने खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक की मुफ्त नजात का मजा चखा है। कैन यू इमेजिन when you were not aware of the Lord Jesus Christ and the wonderful gift that he has for you, and you and I were walking with the guilt, walking with our sin, walking with the guilty conscience, and how blessed you and I are today. That guilt is washed away, not with water and soap, but that guilt is washed away by faith, by Christ, only by his grace. हमने कोई काम नहीं किया। गरीबों को, इतने गरीबों को खाना खिला दो, इतने चिराग जला दो, इतने दुम्बे इस रंग के कुर्बान कर दो, उसके बदले में आपकी निजात हो जाएगी, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। फलां शहर चले जाओ और वहां उसका दौरा कर लो, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो ये सारी खूबियां मैं आपको नए नामे की बता रहा हूं। तो जिसके हम मेंबर हैं कलीसिया के, और ये निजात मुफ्त तोहफा है, कीमत से नहीं खरीद सकते। न्यू लाइफ यू कैन नॉट बाय विद द प्राइस और विद द मनी और विद नेक काम, गरीबों को खाने खिलाकर नहीं। इस तरह नए नामे का जो मरकजी मौजू है, जो मेन मैसेज है, वो क्या है? वो पहले ये जो बता दिया, इट इज द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। ये निजात का पैगाम है। आप अंजील पाक का मुताला करते हैं जो इस निजात दहिंदे का एक इंट्रोडक्शन कराती है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। तीसरी बात, अब आप रसूलों के अमाल की किताब जो है उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल की बात कर रहा हूं। एक्ट्स की किताब से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो पहली एडी के बहरे रूम की दुनिया के एक बड़े हिस्से के जरिए से इस बड़ी निजात के बारे में और इस बड़ी निजात के पैगाम को, खुशखबरी अंजील पाक के फैलाव को बयान करती है, जो हमने कलाम पाक में, तारीख में इसका मताला किया है। मेडिटरेनियन वर्ल्ड में जो मसीहत फैली और जो 12 रसूलों को हुक्म दिया गया कि जाओ और सब लोगों को, मैथ्यू की 28वें बाब की चंद आखिरी आयात आपने कई दफा सुनी है और आप उनको जुबानी जानते हैं कि किस तरह से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में चर्च की हिस्ट्री डेवलप होती है। किन मुश्किलात से चर्च गुजरा, किन मुश्किलात से रसूलों को गुजरना पड़ा, कैसी मारे खाई, कैसी शहादत उनको मिली,
اور کیا خوبصورت ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. میں نے آپ کو ایک دفعہ یاد کروایا ہوگا کہ جب ایکٹس آف دی اپوسٹل چیپٹر 1 ورس 8 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، چیپٹر 1 ورس 8، جب آپ کو آسمان سے اوپر سے قوت ملے گی، پاک روح ملے گا، اینڈ دین یو ول بی مائی وٹنسز. کہاں پر؟ یروشلم، جوڈیا، سمیریا اینڈ دی اینڈ آف دی ارتھ. تو میں نے ایک آرگومنٹ پیش کیا، آپ کے سامنے بھی کیا اور بہت بڑے بڑے چرچز کے سامنے بھی یہ کیا کہ کین یو ٹیل می، یہ اتنا آسان تھا کام جو رسولوں نے کے ذمہ کیا گیا؟ آسان تو نہیں تھا. میں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ میں یروشلم میں جاؤں گا. Who will go to یروشلم؟ یروشلم میں تو قتل عام ہوا، پیدائش کے اوپر ہی بچوں کا خون بہایا گیا جو 2 سال کے تھے یا 2 سال سے کم عمر کے تھے. اسی وقت پہلے دن کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتا ہے. تو میں ہوتا تو میں کہتا خداوند پلیز ڈونٹ سینڈ می ٹو یروشلم، سینڈ می ٹو امیرکا، سینڈ می ٹو کینیڈا. آئی ایم ولنگ ٹو سفر دا کراس آف لگژری بٹ ڈونٹ سینڈ می ٹو یروشلم. پیپل آر ویری cruel. They have no head on their shoulder. They have killed you. They will kill us. We are not going to Jerusalem. Send us to America. Send us to some other country. Send us to Japan. We will go there, but not Jerusalem. اپنے شہر میں گواہی دینا جہاں پر آپ رہتے ہوں آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن کسی نے یہ آرگومنٹ پیش نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ they understood the word that our Lord used. آپ کو یاد ہے کیا لفظ تھا؟ You will be my witnesses. تم میرے گواہ ہو. گواہ بھی کس کے؟ جس کے جانی دشمن اس شہر میں موجود ہیں، خون کے پیاسے اس شہر میں موجود ہیں، آپ کو اوپر پہاڑ سے نیچے گرانا چاہتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تمام تر معجزات کے باوجود، تمام تر اچھی تعلیم کے باوجود، تمام تر میریکل کے باوجود they were so thirsty after his blood. ان لوگوں کے پاس کون جائے گا؟ لیکن nobody came up with that smart argument because they knew who is making the new covenant. He has made that covenant with his blood. He will keep his covenant till the end. And what was the word? Witness. Underline the word witness. انگریزی میں جو witness اور اردو میں جو گواہ ہے، اس کی روٹ ماننگ کیا ہے؟ اس کے روٹ ماننگ ہے martyred، شہید. تو اب آپ کو اس آیت کو یوں پڑھنا چاہیے، نئے عہد نامے کا ایک اہم نقطہ، کہ you will be my martyred in Jerusalem and Judea and Samaria and the end of the earth. How true he was to his covenant. Almost all of his apostles were martyred except John, the most beloved. He died of unnatural causes, if there are natural causes. He died of a natural birth. But everybody else was martyred. آج تک ہو رہے ہیں خداوند کے لوگ. آپ خبریں دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قتل کیے جا رہے ہیں، چرچز برن کیے جا رہے ہیں. آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، ہندوستان میں، پاکستان، کس ظلم کا شکار ہے. How true our Lord is to his covenant. تو یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے مسیح بننا، بزدلوں کا کام نہیں ہے روح میں چلنا، بزدلوں کا کام نہیں ہے تابع داری کرنا. میں ثبوت کے طور پر بہت ساری باتیں اپنی زندگی سے شیئر کر سکتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن
یہ بہادری کا کام ہے، یہ ایمان کا کام ہے، یہ کوننٹ پہ یقین کا بات، چاہے میری گردن تن سے جدا ہو جائے۔ تو میں نے تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اینڈ مائی چلڈرن سفر لاٹ وین دے ور ینگ۔ آفر ہوئی آپ امریکہ آ جائیں، اگر آپ کو پیسوں کی پرابلم ہے وی ول پرووائڈ دا منی، مائی فرینڈ سیڈ۔ میں نے کہا نو، آئی ول ناٹ ڈو دیٹ۔ اب جو دوسروں کو تو میں بڑے اچھے اچھے لیکچر دیتا رہا ہوں، commitment and the witnesses and the meaning of the witness and all that۔ اور جب میرے اپنے بچوں کے بیوی کے اوپر اور میرے اوپر آئی ہے تو میں بھاگ جاؤں؟ I will be bringing disgrace to the gospel of grace that I was preaching. And my wife, my children, had no problem with that. Even the youngest son, Luke, chota tha, Dad, if this is what God wants you to do, do it. Another word، یہ کوئی میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں، I will never teach something that I don't practice by myself۔ تو آپ اس لفظ کو سمجھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ بحرہ روم کے بڑے حصے نے کس طرح سے اس کو قبول کیا، اور لیکن آن دا ایکسپینس آف دا لائف آف دا اپوسٹلس۔ اب چوتھی بات جو آپ کو بیان کرنی ہے، اب میں نیو ٹیسٹمنٹ کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں مختصر لفظوں میں، کہانی تو لمبی ہے۔ اب آگئے خط، لیٹرز ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، ان کا خطوط کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو خطوط ہیں، یہ جو خط ہیں، اس عظیم مفت نجات کی نعمتوں کا، بلیسنگ کا ایک تصویری اور ایک قلم بند تصویری سچویشن میں بیان کرتا ہے۔ ان بلیسنگ کو جو چرچ کو ملی ہیں اس نیو کوننٹ کے وسیلے سے، اس کا ثبوت وہ خط ہیں جو مقدسین نے ان کلیسیاؤں کے نام لکھے، اور ان میں جو مشکلات پیدا ہوئیں ان کا ذکر ہے، ان میں جو گناہ سرزد ہوئے ان کا ذکر ہے، ان میں جو دوسری چیزیں کمزوریاں پائی جاتی تھی اس کے لیے بڑی خطرناک قسم کی وارننگ موجود ہے، جو آج بھی کلیسیا کی حوصلے کے لیے ایک سونے کے اوپر سہاگا ہے۔ پانچویں بات آ گئی، وہ ہے مکاشفہ کی کتاب۔ یہ مختصر تعارف ہے، ویسے تو ایک کے تعارف کرانے کے لیے تو پھر کئی مہینے لگ جائیں گے۔ مکاشفہ مکاشفہ نجات کے اختتام کا پیش خیمہ ہے۔ آخری کتاب مستقبل میں خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک ترین اور خداوند کے لوگوں کی فتح کیا بیان کرتی ہے۔ نئے عہد نامے کی کتابوں کی ترتیب جیسا کہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں، یاد رکھیے نئے عہد نامے کی کتابوں کی ترتیب بڑی منطقی ہے، بڑی لاجیکل ہے۔ اب پہلے گاسپل کا ذکر کر دیتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک ترین کی زمینی زندگی کا ریکارڈ پیش کرتی ہیں، کہ وہ کیا ریکارڈ تھا، خداوند نے کیا فرمایا، کہاں گئے، کن لوگوں سے کیا باتیں ہوئیں، کیا کرامات آپ کے قدرت کے نام سے ہوئی ہیں اور کسی اور کے نام سے ہوئی ہیں۔ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، خود فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ لوگوں نے سوال اٹھایا، سوائے خدا کے۔ اور پھر کوڑیوں کو، مردوں کو، جو ساری تفصیل جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے صرف انجیل کا آخر میں ذکر کیا، حالانکہ پہلی انجیل ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، لیکن میں نے دوسری کتابوں کا پہلے ذکر کر دیا، انجیل کا آخر میں ذکر کر دیا۔ اور انجیل کیا ہے؟ گڈ نیوز۔ لفظی مطلب تو یہی ہے، گڈ نیوز۔ میں لوگوں کو شوق دینے کے لیے کہتا ہوں، ہاں اٹ از گڈ نیوز، بیکاز میری واز ناٹ یور ڈاٹر اینڈ میری واز ناٹ یور سسٹر۔ That's why you call it's a good news gospel. Imagine you, a father and mother, watching Fox News, Christian America में Fox News ही watch करते हैं, and you are drinking your coffee, sitting there,
and your daughter come marry. Good morning, daddy. Good morning, mama. Guess what? The angel came in the middle of night, and I'm going to have baby. आप पंजाबी हैं या रेड नेक हैं? इस जुमले को सुनकर आप क्या करेंगे, ये मुझे बताइए, जिसको आप गुड न्यूज कहते हैं, गॉस्पल। यहां से उसकी इब्तिदा हो रही है, यू विल बेयर अ सन। आपको पता है इसकी सजा क्या थी? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, मैरी शुड बी स्टोन टू डेथ। ये है गुड न्यूज। इट इज अ गुड न्यूज, बट बिफोर इट बिकम गुड न्यूज, इट डिमांड योर वेरी लाइफ। इमेजिन दैट। ना तो मां बाप ने कोई रिएक्शन दिखाया। यू नो व्हाई? दे वर गॉडली पीपल। Godly people don't react on the worldly emotions. गैरत पर वो कुर्बान नहीं करते। They think biblically. They keep the Old Testament and the New Testament की बिगनिंग को, क्योंकि ओल्ड में न्यू का जिक्र मौजूद है, आने वाले का जिक्र मौजूद है, पेशन गोइयां मौजूद है। अब जब पेशन गोई पूरी होने लगी तो आप उसका रिएक्शन दिखाएंगे? नहीं दिखाया। ये छोटी सेक्रीफाइस नहीं है। और खुदा ने कैसे हिफाजत की वो भी आप जानते हैं। अभी पैदा ही हुए तो आपको हिजरत करनी पड़ गई। छोटे थे और आपको आपके दुनियावी माँ और बाप को मुल्क छोड़ना पड़ा, और वो भी रात के अंधेरे में। टॉक अबाउट सेफ्टी, टॉक अबाउट गॉड्स प्लान, टॉक अबाउट द बर्थ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। ये कवनेंट आसान नहीं है। ऐसे नहीं लोग अपने घर जलाने के लिए दे देते, ऐसे नहीं लोग अपनी बॉडी कुर्बान होने के लिए दे देते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द न्यू कवनेंट। तो फिर अमाल की किताब जो है वो मसीहत के फैलाव के बारे में है, कि कैसे मसीहत का ये खूबसूरत पैगाम दुनिया में फैला। और खतूत जो कलीसिया मसाइल को, मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं और आखिरी किताब का भी जिक्र कर चुका हूं। अगर मैं कहूं तो दो चार लफ्ज और हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आखिरी लफ्ज है अंजील पाक का मतलब खुशखबरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया गुड न्यूज है, क्योंकि खुशखबरी गुड न्यूज कहा जाता है खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक तरीन की सलीबी मौत और फिर मुर्दों में से जी उठने के जरिए तमाम बनी नौ इंसान के लिए नजात का रास्ता खोलने का नाम न्यू कवनेंट है, और यही गुड न्यूज है। अगर कोई आपसे पूछ ले गुड न्यूज क्या है, मैं पूछता हूं लोगों से कितनी अंजीलें हैं, तो कहते हैं चार। तो मैंने कहा अंजील का मतलब क्या है? गुड न्यूज। बहुत अच्छी बात है, आप तो सारा कुछ जानते हैं। आप बताइए कि मत्ती के मुताबिक लिखी गई अंजील, उसकी क्या खुशखबरी थी? उसकी गुड न्यूज क्या है? मरकज की गुड न्यूज मत्ती से मुख्तलिफ है। लूका की गुड गुड न्यूज इन दोनों से मुख्तलिफ है। और यूहन्ना की जो अंजील हम तक पहुंची, जरिए से पहुंची, क्या उनकी अंजील की खुशखबरी इन तीनों से मुख्तलिफ है? नहीं, एक ही खुशखबरी है जो चार मुख्तलिफ रावियों के जरिए से हम तक पहुंची है, बट इट्स वन गॉस्पल। तो मैं कहता हूं अच्छा, खुशखबरी का मतलब तो, इंजील का मतलब तो आपने बता दिया, खुशखबरी। और अब आप ये भी बता जान गए कि खुशखबरी क्या है। तो गुड, गुड कहते हैं आप उसको, गुड न्यूज अंग्रेजी में। तो आप गुड का ही मतलब बता दें। गुड किसको कहते हैं? तो नहीं पता। मैं कहा यार मैनू ते थोड़े ना ही पता होए तो ਤੁਹਾਡੇ को पूछ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ व्हाट इज गुड न्यूज।
but just tell me the word good. ਜੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ व्हाट इज गुड स्टैंड फॉर गुड आप गुड फ्राइडे कहते हो तो गुड फ्राइडे का क्या मतलब है गुड फ्राइडे जीसस वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस दैट व्हाट यू आर कॉलिंग अबाउट गुड फ्राइडे नहीं ये मतलब नहीं है तो व्हाट इज गुड फ्राइडे टू यू इन ओल्ड इंग्लिश इज नॉट इवन माय फर्स्ट लैंग्वेज माय थर्ड लैंग्वेज और आप लोग अंग्रेजी दान हैं this is your first language and you don't know the word good good mean holy good mean God अब न्यूज का मतलब बता दे न्यूज का भी मतलब है बिल्कुल न्यूज का मतलब है तो आपको नहीं पता न्यूज का क्या मतलब है कोई लफ्ज बेमानी नहीं है इफ गुड हैज मीनिंग न्यूज हैज मीनिंग हाउ डू यू स्पेल न्यूज NEWS you know what N stands for north E stand for east W stand for west and S stand for south. This good news, this new covenant of our Lord, written by his blood through his apostles on our heart, is good news. It must go to all four corners of the world. That's what it means. This happy news, this good news must go to all four corners of the world. ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋग इसकी तरफ तवज्जो देते हैं but we are so grateful that the Lord has given us this command and his happy holy good news must go to all four corners of the world. We are so thankful. I can share many things, but I think I'll just close that here. Thank you very much for listening. And I hope that this message was helpful to you to understand the difference between old and new covenant. And now everything is revealed to you, and we are so thankful. May God bless you and the teaching of his word, and may you spread this happy and good news to every corner of the world. In Jesus' most blessed name, I offer my morning prayers. Amen.